Hello students, good morning all of you. Dear students, so today we will continue the chapter number first, that is nutrition in plants, you know very well. So the chapter is about the nutrition in plants, and we have talked about the autotrophic nutrition in plants and heterotrophic mode of nutrition in plants. Okay, so in the last class we have talked about the four kinds of heterotrophic mode of nutrition in plants, that were parasitic plants, that is parasitic mode of nutrition, saprotrophic mode of nutrition, symbiotic mode of nutrition, and insectivorous plants and insectivorous mode of nutrition. Okay, so in this paragraph we have learned about only first kind of heterotrophic nutrition, that is parasitic plants. Okay, so parasitic plants क्या होते हैं? The plants that live on other plants or other trees for their nutrition. So parasitic plants are of two kinds: total parasitic plants and partially parasitic plants. Total means they are completely depend on the host plant, and partial, that means कि they are half dependent. That means कि they can make their food, but for some other nutrients and some other things they are dependent on the host plant. Okay, now today we will going to talk about the three kinds of heterotrophic mode of nutrition in plants. Okay, so let's talk about the saprotrophic plants. Okay. Okay, so saprotrophic plants, or we can say these plants are saprotrophs. Okay, so students, the plants that you see around yourself, like green plants, trees, they are not saprotrophs. In the category of saprotrophs, there is another kind of organisms that we have talked in the last class are called fungi. Okay, so fungi are the saprotrophs. Okay, so fungi saprotrophs means क्या होता है? Saprotrophs organisms or plants obtain their food from dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter, that means plants and animals. यानी कि ऐसे plants जो होते हैं वो dead यानी कि सड़े हुए या खराब हो गए, पुराने हो गए plants और animals को खाते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं. Okay, so these plants, we can write here, they obtain their food from dead and decaying plants and animals. Dead and decaying plants and animals. ओके, यानी सड़े हुए प्लांट्स या मर गए हैं उनसे अपना फूड लेते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे लेते हैं? मान लेते हैं कि कोई फ्रूट से होगा, वो कमजोर हो गया है और वो गिर गया है प्लांट से. ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे? जैसे ही वो नीचे गिरेगा उसके ऊपर ये जो होते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, इनको हम फंगी बोलते हैं, वो उनके ऊपर लग जाते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? दे रिलीज सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स. वो अपने अंदर से कुछ एंजाइम्स यानी कि कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, और जो है वो उस केमिकल्स के थ्रू क्या होता है कि वो जो पार्ट होगा, वो जो मान लेते हैं कि प्लांट्स का कोई पार्ट है और एनिमल्स का कोई पार्ट है, तो वो धीरे धीरे उसको तोड़ने लगेगा, यानी कि उसको वो डिकम्पोज करने लगेगा. ठीक है, डिकम्पोज करते करते वो टूटेगा. धीरे धीरे वो क्या करेंगे? उस डिकम्पोज मटेरियल से, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड से वो अपने लिए उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने लगेंगे. ठीक है, क्लियर? सो मेनली इसका एग्जाम्पल जैसे कि होते हैं आपके घर में, अक्सर आप देखोगे कि मम्मी ने कुछ पकाया हुआ है, अगर सुबह में बनाया है तो शाम में आप देखोगे तो उसके ऊपर बिल्कुल वाइट सा लग जाता है, या कॉमनली जो ब्रेड के ऊपर लग जाते हैं, वाइट हो जाता है ब्रेड, कभी कभी ग्रीन हो जाते हैं, कभी कभी फ्रूट्स के ऊपर भी लग जाते हैं, तो वो है आपके फंगी. ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, या ये सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं. ठीक है, सो ये क्या करते हैं? पूरे ब्रेड के ऊपर आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि ब्रेड के ऊपर कैसा लगा हुआ है.
मॉइस्ट एरियाज, यानी कि अगर थोड़ा सा भी हम इनको मॉइस्चर टेम्परेचर दे देते हैं तो वो उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं। ओके, क्लियर। सो जितने सारे फंगी होते हैं वो आपके सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, जितने सारे भी होते हैं। ओके, उसके अलावा फंगी के अलावा जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, दे आर ऑल्सो सैप्रोट्रॉप्स, वो भी सैप्रोट्रॉप्स होते हैं और वो भी इसी मेथड के थ्रू अपना फूड लेते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को डीके, यानी वो जो डीके होने लगता है, सड़ने लगता है, तो उनसे वो अपना फूड लेते हैं। ओके, बट सारे फंगी हम नहीं कह सकते कि वो हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो सड़ाते हैं चीज़ों को, उस चीज़ों को स्पॉइल करते हैं, रॉटन करते हैं। बट कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, लाइक मशरूम आपने सुना होगा। ओके, मशरूम इज द एडिबल फंगी, यानी कि जो इस तरह का छोटा छोटा सा होता है, ठीक है, ये आपका पकाया जाता है, इसकी सब्जियां बनती हैं, ठीक है, तो ये आपका बेनिफिशियल है। ना नेक्स्ट है आपका सिम्बियोटिक प्लांट्स और सिम्बियॉन्स भी कहते हैं। Okay, so symbiotic plants or symbionts. What are these types of plants? These are not like you see in your daily life. जैसा आप रोज प्लांट्स को देखते हैं, ये वो वाले प्लांट्स नहीं होते हैं। सिम्बियोटिक प्लांट्स होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं दैट मीन्स कि जब दो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, when two organisms live together and share shelter and food or nutrients, their relationship and their association is called symbiosis or symbiotic relationship and the plants are called symbionts. Okay, तो होता क्या है कि दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो वो जो है एक दूसरे काइंड का ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं सिम्बियॉन्ट्स और सिम्बियोटिक प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं आपके कुछ अलग तरह के वो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बोलते हैं लाइकेन्स। ठीक है, तो लाइकेन्स आर द अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स और अनदर काइंड्स ऑफ प्लांट, ठीक है, जो कि दो ऑर्गेनिजम्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन कौन सा होगा, इसमें एल्गी होगा, एल्गी इज अ प्लांट, माइन्यूट, और एक ऐसे ही माइक्रो प्लांट्स। ओके, प्लस इसके साथ क्या होता है जो हमने पहले बात की थी, फंगी। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलके रहते हैं और लाइकेन्स बनाते हैं। ठीक है, एक साथ रहते हुए एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, यानी कि एक दूसरे का साथ देते हैं, शेयर करते हैं। क्या चीज शेयर करते हैं? एल्गी, क्योंकि एल्गी प्लांट है, एल्गी इज अ ग्रीन प्लांट एंड फंगी इज अ नॉन ग्रीन प्लांट। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लाइकेन्स बना रहे हैं। एल्गी क्या करता है, बिकॉज एल्गीज आर ग्रीन प्लांट्स, सो एल्गी में क्या होगा, फूड बनेगा। ग्रीन है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, फूड बनेगा, फूड बनेगा। ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स ही अपना फूड नहीं बना सकते क्योंकि ये सैप्रोट्रॉफ होते हैं, अभी पढ़ा कि ये सैप्रोट्रॉफ होते हैं। इनका जो फूड है ये इनको देते हैं, यानी कि ये फंगीज एल्गी से फूड लेते हैं। ठीक है, और फंगी क्या करते हैं, इनके लिए मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सो सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ सम प्लांट। ठीक है, फंगी हाँ कहाँ गया, डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ईच अदर। एल्गी इज ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफ, फंगस क्या करता है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स इनको प्रोवाइड करता है। तो ये क्या होगा, इनको क्या मिलता है, फूड मिलता है, ये इनको क्या देते हैं, इनको मिनरल्स और शेल्टर देते हैं, शेल्टर। ठीक है, यानी कि मिनरल्स, जैसे कि इनको मिनरल्स जरूरी है इनकी ग्रोथ के लिए, तो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा, इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इनको रहने के लिए जगह देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो एक तो ये एग्जाम्पल है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोन्ट्स। ठीक है, ये सिम्बियोन्ट्स और सिम्बियोटिक प्लांट का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल होता है जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, यानी कि रिलेशनशिप। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स
से रहते हैं कि उनके रूट्स में फंगी रहता है, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। लिखना पड़ेगा माइकोराइजा, ठीक है। ये एक रिलेशन का नाम है, ठीक है। इट इज द नेम ऑफ अ एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ द प्लांट्स प्लस फंगी, ठीक है। ये जो सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स जो फंगी होते हैं, दे लिव इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उनके रूट्स में ये रहते हैं, तो एक तरह से जो है दोनों, मतलब एक तरह से रिलेशन हो गया कि फंगी क्या करते हैं प्लांट्स के लिए, वही उनको मिनरल्स वगैरह उनको एब्सॉर्ब करके देते हैं, क्योंकि ट्रीज ग्रीन होते हैं तो अपना फूड बनाते हैं और उनसे वो फूड लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका एक रिलेशनशिप हो गया। इसके अलावा क्या होते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है। अनदर रिलेशन और अनदर एसोसिएशन, अनदर सिम्बियोटिक एसोसिएशन is between roots of leguminous plants। इसको इरेज करना होगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। माइकोराइजा हो गया, लाइकेन्स हो गए, ओके। अनदर काइंड ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इज अनदर काइंड ऑफ association is between roots of the leguminous plant, roots of the leguminous plants and the bacteria, okay। तो जो सॉइल बैक्टीरियाज होती हैं वो बैक्टीरियाज जो सॉइल में रहते हैं, ठीक है। सो सॉइल में रहने वाले बैक्टीरियाज क्या होते हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो पल्सेस वाले प्लांट्स को बोलते हैं, यानी कि जो दाल दलहन वाले प्लांट्स जैसे कि पी, चिकपी, पिजन पी, ब्लैक ग्राम, इनकी जितने आपके दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में सॉइल बैक्टीरियाज रहते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरियाज क्या क्या होते हैं, जैसे कि राइजोबियम है, ठीक है, एक कॉमन सॉइल बैक्टीरिया, ये सॉइल में रहने वाला है। तो अगर उस सॉइल में लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वो बैक्टीरियाज उस लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में, ठीक है, रूट नोड्यूल्स में जाके रहता है। करता क्या है कि वो प्लांट्स से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि प्लांट्स ने जो फूड बनाया है वो उनको एब्जॉर्ब करता है। बदले में उनको क्या करता है कि प्लांट्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टूडेंट्स ये है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड तो बना लेते हैं जिसमें कि वो ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन जो एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है, नाइट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नाइट्रोजन को नहीं बना पाते हैं और ना ही नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सो इस नाइट्रोजन को लेने के लिए क्या होता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करते हैं? नाइट्रेट्स में, यानी कि ये केमिकल बना देते हैं, केमिकल्स बनाकर सॉइल में, यानी कि उनके रूट्स में छोड़ देते हैं और वो वाटर के थ्रू इन्हीं नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि प्लांट्स वाटर के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो नाइट्रेट्स को भी वाटर के साथ एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन सप्लाई में, या हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ओके। सो ये एक तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। सिम्बियोटिक प्लांट्स के अलावा एक तरह का रिलेशनशिप भी है जहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते रहते हैं।
बैक्टीरियाज उनसे फूड ले लेते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नेम से ही पता चल रहा है कि इंसेक्ट्स है, कि इंसेक्ट्स इसका इसमें काम है। ठीक है, वैसे तो प्लांट्स होते हैं वो खाते हैं, उनके पास तो माउथ होते नहीं है, तो वो किसी चीज को खा नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसी जगहों पर होते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। Insectivorous plants. Okay, so some plants are uniquely develop or grow in that area, a region where there is the deficiency of nitrogen in the soil. ठीक है, तो जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर क्या होता है कि वो जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड तो बना लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन उनको नहीं मिल पाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि वो एनिमल्स को ट्रैप करते हैं, यानी कि वो एनिमल्स को खाते हैं। एनिमल्स का मतलब वो बड़े बड़े एनिमल्स को नहीं खाते हैं, दे ईट और दे ट्रैप और दे डाइजेस्ट इंसेक्ट्स जो कि छोटे छोटे होते हैं। सो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको डाइजेस्ट करके इंसेक्ट्स के अंदर जो नाइट्रोजन है वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, इसमें एग्जाम्पल है प्लांट्स के एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रेट, ब्लैडर वॉल्ट एंड संडे। ओके, ब्लैडर वॉल्ट एंड संडे। ठीक है, सारे प्लांट्स नहीं, कुछ प्लांट्स ही ऐसे होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे पिक्चर प्लांट होता है, तो पिक्चर प्लांट की लीव्स तो होती हैं, कुछ ग्रीन लीव्स होती हैं, कुछ उनकी लीव्स क्या होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती है, मतलब कि वो चेंज हो जाती हैं और वो ऐसा बिल्कुल एक क्या बोलते हैं उसको, एक फलक के शेप या फिर एक बोले फ्लास्क की तरह जो है वो शेप बनाते हैं। और जब वो इनसे चल के उस जो शेप के पास आता है, यू कैन सी इन द पिक्चर, वो उसके अंदर जैसे ही जाता है वो फट से जो है उसके ऊपर एक कवर रख लेते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाता और वहीं इसको धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही वीनस फ्लाईट्रेट में क्या होते हैं कि वो इस तरह से ओपन होते हैं, जैसे ही उसके अंदर एनिमल्स यानी कि जो इंसेक्ट्स मूव करते हैं वो झट से अपना ये कैप की तरह बंद कर लेता है। ओके, सो इस तरह से क्या होता है कि प्लांट्स अपने आप को न्यूट्रिएंट जो होता है वो सप्लाई करते हैं इस तरह से। ठीक है, सो इसके लिए क्या होता है उनके अंदर जो होता है वो मॉडिफिकेशंस होता है, यानी कि उनकी कुछ लीव्स जो होती हैं वो कुछ अलग तरह का पार्ट्स बनाती हैं ताकि वो ट्रैपिंग का काम कर सकें। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज डन। ठीक है, हमने पढ़ लिया है प्लांट्स में क्या क्या हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कि मेनली उनके न्यूट्रिशन का क्या सोर्स है, किस तरह से वो अपने आप को न्यूट्रिशन देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक बार हम झट से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सम प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। इसमें हमने पढ़ा था कि सम प्लांट्स जो होते हैं वो आपके पैरासिटिक होते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। दूसरी चीज की कुछ अनदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, फंगी, वो आपके सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, बैक्टीरिया सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के साथ रहेंगे, फंगी के साथ रहेंगे, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं। ओके, क्लियर? ओके, आई थिंक इट इज डन। नाउ you have to complete the questions that will send in your PDF. Now the second chapter we will talk about in next class.